Hello friends, I Dr. Shuchi Mathur welcomes you all in the new session of the service marketing. Now today's topic is the complaint handling. Complaint means a complaint is an expression of dissatisfaction. It could also be described in a positive manner. Every respond to service failures differently. So how the service providers handle these complaints. So first question is why do there is a need to complain of the particular service or the product? So there is a gap between the service provider's promise and keeping that promises to the customer. So for this we have to go for the promises. Basic service promises model. There are two things in this promise model. First, someone making a promise or someone keeping a promise. That means someone makes the promise. That is also known as a sales. That means sales team makes the promise to their customers, and someone keeping the promises. The service provider keeps the promises. So they are the two things. The person who is making the promise, or the second party is who is keeping the promises, and that these two things deliver to the customer. So in a large organizations, promises can be made and delivered by the different groups. Like first, the marketing or the salesperson making the promises, but the delivery boy who actually delivers the services, the person who is delivering the services has to keep the promises to the customers. Like for an example, like पेस्ट कंट्रोल है, हमारे जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स है उन्होंने तो प्रॉमिस कर दिया कि लाइक आपके पास टाइम से पहुंच जाएगा और आपकी डिफिकल्टी सॉल्व हो जाएगी, बट उन प्रॉमिसेस को कौन रख रहा है? मेरे एग्जीक्यूटिव्स, जो कि एक्चुअली में सर्विस की डिलीवरी दे रहे हैं. Promises model of the service delivery. There are three groups that are linked or interdependent: the marketing or sales, the delivery, and the customers. The marketing to the sales, that making the promises, delivery to the customers, that it keeping the promises. But marketing और delivery के बीच में ये बताते हैं कि like what promises is and how you can achieve or keep that promises to the customers. So service delivery need to understand the service and be able to provide it. सो गैप कॉज सर्विस फेलियर. अब इन गैप्स के कारण, इन सब गैप में के कारण कुछ सर्विसेज हमारी फेलियर हो जाती हैं. लाइक फर्स्ट, मार्केटिंग और सेलिंग क्या करती हैं? प्रॉमिसेस बनाती हैं कस्टमर्स को. अब कस्टमर्स और मार्केटिंग सेल्स के बीच में क्या हो जाता है? कभी कभी कम्युनिकेशन गैप आता है. लाइक मार्केटिंग ने कुछ और कहा था, कस्टमर ने कुछ और परसीव कर लिया है उस चीज़ को, तो या फिर कम्युनिकेशन गैप आ गया है, तो इसकी वजह से एक गैप आ जाता है. या फिर एक जो गैप होता है वो मैनेजमेंट परसेप्शन गैप आ जाता है कि मैनेजमेंट ने परसीव ही गलत किया था. जो कस्टमर्स चाहते थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, हमने कुछ और परसीव कर लिया, तो परसेप्शन गैप आ गया है. अब मार्केटिंग और डिलीवरी के बीच में भी, डिलीवरी बॉय के बीच में भी गैप आ जाता है. लाइक समवॉट जब मार्केटिंग वाले कम्युनिकेट करते हैं डिलीवरी वालों को कि हमने ये प्रॉमिस किया है एंड दीज आर द प्रोसीजर थ्रू विच यू कैन कीप द प्रोमिसेस. So in between there would be a gap like quality specification gap. Maybe जो क्वालिटी है मैं उनको अच्छे से स्पेसिफाई नहीं कर पाई हूँ, तो मेरे लिए क्वालिटी स्पेसिफिकेशन गैप आ जाएगा. मे बी कभी कभी सर्विस डिलीवरी गैप आ जाता है. जब मैं डिलीवरी दे रही हूँ तो मैं चाहती नहीं हूँ वैसे सर्विसेज देना, बट कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसिस के कारण कुछ गैप आ गया है. ठीक है. और डिलीवरी और कस्टमर्स के बीच में परसेप्शन सर्विस क्वालिटी गैप आ सकता है. लाइक कस्टमर ने और जो डिलीवरी बॉय है मेरा, उनके बीच में जो भी परसेप्शन है दोनों का, उसके बीच में कुछ गैप आ गया है. इसकी वजह से मेरी सर्विसेज फेलियर हो सकती हैं. नो, सर्विस फेलियर इज द प्रोसेस ऑफ नॉट कीपिंग द प्रोमिसेस. सर्विस फेलियर क्यों होती है? क्योंकि हमने जो प्रोमिसेस किया है हमारे कस्टमर्स के साथ, हम उससे नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं. सो मेरी एक्सपेक्टेड सर्विसेज जो होती है, अगर उससे अबव है तो वो ग्रेट सर्विसेज में आती हैं. That means services which are above expectations are under the great services. और ये जो पर्टिकुलर आपको बताया गया है जोन ऑफ टॉलरेंस, दैट मीन्स यहाँ तक मेरा टॉलरेंस पॉइंट है, यहाँ तक मुझे सर्विसेज ठीक लगे. उससे ज़्यादा ऊपर है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उसके नीचे है तो आई कंसिडर द सर्विसेज इज द पुअर सर्विसेज, एंड दैट पुअर सर्विसेज वुड बी कंसिडर्ड एज द फेल्ड सर्विसेज. सो दिस इज द कॉज ऑफ द सर्विस फेलियर. क्या क्या कॉजेज है?
फर्स्ट तो मेरा सबसे पहले जो स्टेप जाता है वो मेरा प्रोसेस रहता है कि मेरा सर्विस प्रोसेस क्या है, मेरा सिस्टम क्या है। देन उसी के बीच में हम थोड़ा सा चलते हैं, देन एक्सपेक्टेशंस आती हैं कस्टमर्स की, एक्शंस ऑफ द कस्टमर्स की, कस्टमर का एक्शन कैसे है, एक्शंस ऑफ द अदर कस्टमर्स ऑल्सो, लाइक जो मेरा टारगेट कस्टमर है उसके साथ में कोई और कस्टमर्स है, उनके एक्शंस कैसे जा रहे हैं। फिर मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस देखूंगी, एक्सपेक्टेशंस के बाद मैं देखूंगी कि मेरे पास फैसिलिटीज़ कितनी है, क्या एनवायरनमेंट है, क्या उससे कम जा रही है उनकी एक्सपेक्टेशन से, या फिर इक्विपमेंट से, तो फिर ऑलरेडी मेरी सर्विसेज क्या हो गई, फेलियर सर्विसेज हो गई हैं। द नीड्स टू बी मैनेज्ड, अब हमें कुछ मैनेज करना है। द सर्विस प्रोवाइडर नीड्स टू मैनेज दीज इज वेल, इस वजह से हमें ये सारी चीज़ें मैनेज करके चलती है, प्रोसेस भी, सिस्टम भी, देयर एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर एक्शंस एंड अदर कस्टमर्स एक्शंस ऑल्सो। कभी कभी मेरे शॉप पे सपोज अगर 2 तरह के कस्टमर है, एक कस्टमर मुझसे खरीद रहा है, एक कस्टमर उसके साथ में ऐसे ही सिर्फ देख रहा है, but the expressions of the other customer will also pay the impact on my target customer who is taking the interest in my product. So हमें इन दोनों के एक्शंस को जज करना है। नेक्स्ट, मैनेजिंग द कस्टमर, कैसे मैनेज करते हैं हम अपनी, वी लिमिट देयर चॉइसेस, उनकी चॉइसेस को लिमिट करके, जितने ऑप्शंस आप दिखाओगे वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सो हम क्या करते हैं, एक लिमिट कर देते हैं उनकी चॉइसेस को। नेक्स्ट, वी रिस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लाइक हम लोग रिजर्वेशन काउंटर पर होते हैं या फिर फ्लाइट की टिकट्स बुक करा रहे होते हैं, तो हमारे लिए एक बैरिकेड लगा देते हैं, सो डैट ईच एंड एवरीवन इन दैट क्यू ओनली। हॉस्पिटल्स में भी होता है, बिलिंग क्यू अलग होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड विंडो होती है जिसके अकॉर्डिंगली आपको खड़ा रहना पड़ता है। सिमिलरली एज फॉर बैंक्स ऑल्सो, डैट मीन्स हमारे मूवमेंट को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तभी हम कस्टमर्स को मैनेज कर पाएंगे। सेकेंडली, वी टेल देम व्हाट टू डू, हम उन्हें बता दें, लाइक इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमने साइनिंग बोर्ड लगा दिए हैं जो कि आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको अब यहाँ से वहाँ से, जैसे पार्किंग में जाते हो अब तो पार्किंग में एरोज लगे हुए होते हैं जो आपको सेल्फ बताते जाते हैं कि आप कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है। तो ये छोड़ दी कि हमने कस्टमर के ऊपर छोड़ दी हैं कुछ चीज़ें। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द सर्विस फेलियर। फर्स्ट, ग्रुप 1 फेलियर, कोर सर्विस फेलियर। कोर सर्विस फेलियर में मेरे पास आते हैं कि या तो मैं अपनी जो मेरी कोर सर्विसेज है बहुत स्लो दे रही हूँ, या फिर मेरी सर्विसेज अभी अवेलेबल ही नहीं है, या फिर मेरे कोर सर्विसेज के साथ साथ कुछ और सर्विसेज जो अटैच्ड है वो मेरी फेलियर है। सपोज मेरी कोर सर्विसेज है कि मैं फूड सर्व कर रही हूँ, ठीक है, रेस्टोरेंट है मेरा, तो मेरी सर्विसेज स्लो हो गई हैं, या फिर उस कुछ टाइम पीरियड के लिए मेरे पास अभी फूड मैं दे ही नहीं रही हूँ, तो मेरी डिलीवरी जो मैं फूड डिलीवरी करा रही थी वो भी फेलियर हो रहा है साथ में। ग्रुप 2, दैट मीन्स रिस्पॉन्सेज ऑफ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट। इम्प्लिसिट तो वो होती है जो कि कस्टमर्स अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू मतलब हमें बताता है, एक्सप्लिसिट जो कि क्लियर वर्ड्स के थ्रू हमें बता देता है। सपोज कभी कभी उन्होंने क्लियरली हमें बता दिया कि उनकी कोई स्पेशल नीड्स है, लाइक मेरा रेस्टोरेंट है जो वो फूड चाहते हैं इज टोटली डिफरेंट, आई एम सर्विंग द पिज़्ज़ाज एंड दे आर डिमांडिंग फॉर द चाइनीज़ फूड, ठीक है, कुछ स्पेशल नीड्स है उनकी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ रिक्वायरमेंट है, इंग्रेडिएंट जैसा चीज़ जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मेरी सर्विस फेलियर हो सकती है। उनकी प्रेफरेंसेस को मैं देख रही हूँ तो उनकी प्रेफरेंसेस मुझे नहीं समझ आए। कभी कभी कस्टमर का एरर होता है कि लाइक उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है, या वो हमेशा यही समझते हैं कि लाइक दे आर राइट, दे आर ऑलवेज राइट। कुछ ऐसे होते हैं डिस्ट्रप्टिव सर्विसेज होती हैं जो कि डिस्ट्रप्ट करती हैं, तो भी मेरी सर्विस फेलियर्स हो जाएंगी। अनप्रॉम्प्टेड और अनसॉलिसिटेड एम्प्लॉय रिएक्शंस, कभी कभी मेरे एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन भी अनसॉलिसिटेड होता है जो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स में नहीं आता है, बट वो उनका एटीट्यूड इस तरह से होता है कि मेरी सर्विसेज फेलियर हो जाती हैं, वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते हैं, प्रॉपर जो मेरा कंपनी का जो नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं करते, और इसी वजह से वो जो पर्टिकुलर जी स्टैट, दैट मीन्स कि मेरा एक पर्टिकुलर जो एम्प्लॉई है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर होता है। इससे कुछ एडवर्स कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से भी मेरी सर्विसेज फेलियर हो जाती हैं। नेक्स्ट, ग्रुप नंबर 4, इट इज़ एम्प्लॉय रिपोर्टेड इंसिडेंट्स की। एम्प्लॉय की तरफ से इंसिडेंट्स आते हैं कि उसके बिहेवियर में कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं
कि मेरे एम्प्लॉई ने ड्रिंक कर रखा हो या फिर कुछ वर्बल और फिजिकल एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ की हो, कंपनी की पॉलिसीज़ ब्रेक की हो, कस्टमर्स के साथ कॉपरेट नहीं रहा हो. Next is customer complaining behavior. Customer complaining behavior, that first of all we have to understand what is complaint. It is the expression of the dissatisfaction made on an organization related to its product or services or the complaints handling process itself, where a response or resolution is explicitly or implicitly expected. That means कभी हम expressions के through, कभी clear words के through हम express कर देते हैं. Next, complaints क्या होती है? Customer have a low propensity to complain. Only about 4% of customers with problems report those problems as complaints. केवल 4% ऐसे customers होते हैं जिनको actual में कुछ problem होती है. It is not important whether or not a service failure actually occurred, but rather it was perceived by the customer to have occurred. कभी कभी वो सर्विस एक्चुअल में फेलियर नहीं होती है, पर कस्टमर का परसेप्शन होता है कि सर्विस फेलियर हो गई है, इसकी वजह से कंप्लेंट्स आती हैं. इम्पैक्ट क्या होता है सर्विस फेलियर से? क्योंकि जो एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर है वो बहुत सारे कस्टमर्स को कम्युनिकेट कर देगा कि ये सर्विसेज फेलियर है. दैट मीन्स द एवरेज कस्टमर एक्सपीरियंसेस द सर्विस फेलियर टेल्स 9 or 10 अदर अबाउट द फेलियर्स. Now customer response categories to service failure. First, service encounter is dissatisfactory. जब भी मेरी सर्विसेज में कस्टमर का एनकाउंटर हुआ है, जब भी वो आया है और सर्विसेज डिससेटिस्फाई हुई है, तो 3 चीज़ें वो एक्शन ले सकता है. फर्स्ट, टेक सम फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्शंस. सेकेंड, टेक सम फॉर्म ऑफ प्राइवेट एक्शंस. और थर्ड इज टेक नो एक्शन. सो टेक नो एक्शन दैट मीन्स कस्टमर ने कोई एक्शन नहीं लिया है. टेक सम फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स. फर्स्ट, कंप्लेन टू द सर्विस फर्म. या तो हम सर्विस फर्म को ही कंप्लेन कर रहे हैं, या फिर थर्ड, कंप्लेन टू अ थर्ड पार्टी. हम थर्ड पार्टी को कंप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, थर्ड पार्टी या फिर थर्ड कस्टमर जो कि मेरे एडवोकेसी कर रहा है, या फिर हमने कंज्यूमर फोरम में दे दिया है, या फिर कोई टेक लीगल एक्शंस टू सीक द रिड्रेस. नेक्स्ट, टेक सम फॉर्म ऑफ द प्राइवेट एक्शंस. प्राइवेट एक्शंस दैट मीन्स कि मैं प्राइवेट एक्शन में मेरा प्राइवेटली है, तो मैंने क्या कर लिया है कि स्विच कर लिया है ब्रांड से, या फिर मैं नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ बोल रही हूँ. तो दोनों चीज़ों से ही मेरा एक प्राइवेट एक्शन निकलता है. कभी कभी मैं सोचती हूँ कौन कंप्लेन करे, इससे तो बेटर है कि नहीं करते, बट मैं नहीं करती हूँ तो मैं उसको 10 लोगों को और बताती हूँ, और विथ द नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ. सो एनी वन और द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रिस्पॉन्सेज इज पॉसिबल. इनमें से कोई सा भी रिस्पॉन्स होता है अगर मेरा कस्टमर डिससेटिस्फाइड है तो. Understanding customer responses to service failure. Why do customer complain? What proportion of unhappy customer complain? Why don't unhappy customer complain? Who is most likely to complain? Where do customer complain? What do customer expect once they have made a complaint? So these are the points. First, why do customers complain? Their expectation have not met, but obvious that's why they are complaining. To release their anger, to help improve the services, because the concern for others, they also use the services. ठीक है, दूसरे कंसर्न के कारण भी वो कंप्लेन करते हैं कभी. वाई डू कस्टमर कंप्लेन? क्यों करते हैं? व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ अनहैप्पी कस्टमर कंप्लेन? जो भी मेरे अनहैप्पी कस्टमर्स हैं वो कितने कंप्लेंट्स करते हैं? 9 to 37%. द रेस्ट नेवर बॉदर टू कंप्लेन. वाई डोंट अनहैप्पी कस्टमर कंप्लेन? They think it is not worth the time or the effort. या फिर वो ये सोचते हैं कि no one would be concerned about their problem or solve it, or they thought that they do not know where to go or what to do. या तो वो सोचते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट करना है, कौन कंप्लेन करे, या फिर वो ये सोचते हैं कि कोई भी किसी को भी मेरी प्रॉब्लम से उसके सॉल्यूशन से फ़र्क नहीं पड़ता है तो लेट इट बी. या फिर ये भी सोच सकते हैं कि हमें कंप्लेन करनी कैसे है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, तो दैट वुड बी ऑल्सो अ टास्क. तो वो इस वजह से भी इग्नोर कर देते हैं. दे आर नॉट कंप्लेनिंग अस. ईच हैप्पी कस्टमर विल टेल एटलीस्ट 6 अदर पीपल. अगर मेरा हैप्पी कस्टमर है, इसमें है कि अगर कोई हैप्पी कस्टमर है तो एटलीस्ट 6 पर्सन्स को बताता है, जबकि अनहैप्पी 9 से 10 लोगों को बता रहा है. मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फिर पुअर कस्टमर सर्विस एटीट्यूड, ओवर प्राइसिंग, लैक ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, डिले होती है, अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द सर्विस मेटर्स. एंट्री पॉइंट्स ऑफ द कंप्लेन, एम्प्लॉयज सर्विंग कस्टमर फेस टू फेस और बाय द
फ़ोन्स, कहाँ से हमें कंप्लेंट्स आती हैं, या तो फेस टू फेस आती है, फिर फ़ोन के थ्रू आती है, या फिर इंटरमीडिएटरीज के थ्रू आती है लाइक सप्लायर्स, मैनेजर्स कॉन्टेक्टेड बाय द कस्टमर्स एट हेड और रीजनल ऑफिस, या फिर कंप्लेंट कार्ड्स, या फिर जब हम लोग स्पेशल बॉक्स बनाते हैं कंप्लेंट्स के, इसके थ्रू आती है, या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू आती है लाइक कंज्यूमर एडवोकेट्स, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेजिस्लेटिव एजेंसीज, या फिर दूसरे कस्टमर थ्रू। Customers often view complaining as difficult and unpleasant. हमेशा कस्टमर्स यही सोचता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, फिर अनप्लीजेंट है, हम इससे बचना चाहते हैं हमेशा। So 3 dimensions of perceived fairness in service recovery process. अब सबसे पहले मेरे प्रोमिसेस से मैंने प्रोमिसेस को नहीं रखा, या फिर मेरे प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हो रहे थे, उसकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे कंप्लेंट्स हुई। अब उस कंप्लेंट्स के साथ या तो मैं उसे सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, इसको रिकवरी प्रोसेस बोलेंगे कि अब हम रिकवरी कर रहे हैं अपने कंप्लेंट्स की। ठीक है, तो अब हमने रिकवरी करी है, तो रिकवरी क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारी जितने भी सर्विसेज फेलियर्स थी उन सबकी रिकवरी कर रहे हैं। सो फर्स्ट प्रोसीजरल जस्टिस, इंटरैक्टिव जस्टिस, आउटकम जस्टिस, या तो प्रोसीजर जस्टिस जो उन्होंने फॉलो किया है, फिर इंटरैक्शन होता है, देन आउटकम निकल कर आता है, जिससे कि मेरा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए विथ सर्विस रिकवरी। जहाँ पर भी उन्हें कंप्लेंट्स थी उसके थ्रू मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए। नेक्स्ट, कॉजेज बिहाइंड सर्विस स्विचिंग। अब मैं सर्विस स्विच क्यों करना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरह का मेरा कस्टमर ऐसा भी है जो कि सर्विस से स्विच कर जाता है। क्यों करता है, या तो प्राइसिंग फैक्टर्स के थ्रू हम बहुत ज़्यादा प्राइसेस ले रहे हैं, या फिर अनफेयर प्राइसेस ले रहे हैं, या फिर डिसेप्टिव प्राइसिंग खिलाते के लाइक दिखाते हम लोग कुछ और है लाइक सेल्स में, पर एक्चुअल में जो प्रोडक्ट क्वालिटी होती है सेल्स में वो एकदम बेकार है, तो जिससे भी ये कोई चीटिंग होती है एक तरह से कस्टमर्स के साथ। इनकन्वीनियंस लाइक लोकेशन इनकन्वीनियंट है, आवर्स इनकन्वीनियंट है, हमें अपॉइंटमेंट में वेट करना पड़ रहा है, या फिर सर्विस के लिए हमें वेट करना पड़ रहा है। कोर सर्विस फेलियर्स, जो मेन सर्विसेज है वो फेलियर्स हो गए, तो कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है, फिर बिलिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, या फिर सर्विस एस्ट्रोफे में कोई प्रॉब्लम आ गई, लाइक जो सर्विस एटमॉस्फेयर जो हम दे रहे हैं, जो मेन सर्विसेज है उसमें कहीं प्रॉब्लम आ गई है। सर्विस एनकाउंटर फेलियर्स, सर्विस जहाँ पर भी मैं फर्स्ट अपने कस्टमर के साथ मिल रही हूँ, फर्स्ट कांटेक्ट में आ रही हूँ, उसके में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक मैं अनकेयरिंग एटीट्यूड शो कर रही हूँ, मैं इम्पोलाइट हूँ, अनरिस्पॉन्सिव हूँ, मेरे पास नॉलेज नहीं है जो मैं कस्टमर्स को दे सकूँ कि लाइक ये पर्टिकुलर सर्विस और ये जो प्रोडक्ट है आपको इस तरह से यूज़ में ले सकते हो, या आपके लिए इस तरह से बेनिफिट है, इसकी ये प्रोसेस है, मैं नहीं बता पा रही हूँ, तो मेरी सर्विसेज फेलियर हो रही है। तो इस वजह से कस्टमर्स कहीं और स्विच कर लेता है, या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है उन्हें, या फिर कोई रिस्पॉन्स मिलता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, मेरे सर्विस स्विच करने के रीजंस हैं। या फिर मैं बोलूँ कि रिलक्टेंट, मतलब मैं अनविलिंग हूँ उनको रिस्पॉन्स देने के लिए। कॉम्पिटिशन, लाइक जो मेरा कॉम्पिटिटर वो बेटर सर्विसेज दे रहा है, कुछ एथिकल प्रॉब्लम्स आती है लाइक हम चीटिंग कर रहे हैं उनके साथ, या फिर अनसेफ है, या फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इनवॉलेंटरी स्विचिंग, दैट मीन्स कस्टमर मूव कर गया है, या फिर प्रोवाइडर ने ही अपनी सर्विसेज देना बंद कर दिया है। तो दीज आर द पॉइंट्स थ्रू विच द कस्टमर स्विचिंग टू अनदर सर्विस। नेक्स्ट, इज द कंप्लेन अ गिफ्ट। क्या कंप्लेनिंग एक गिफ्ट है तो क्यों है? ये समटाइम्स अ कंप्लेन कुड ऑल्सो बी अ गिफ्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वाई इज इट सो? Because through the complaints we can know about the service failures, the points where my services is failure, तो मैं उस पॉइंट्स में वर्कआउट कर सकती हूँ इजीली, और उस पर वर्कआउट करके मैं अपने अनहैप्पी कस्टमर्स को हैप्पी कस्टमर्स में कन्वर्ट कर लूँगी। If a customer is complaining, you are being given a chance to retain their customer, क्योंकि कस्टमर कंप्लेन भी तब करता है जब वो आपको एक चांस दे रहा है कि ओके ये, क्योंकि कभी तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि चुप रह जाते हैं और स्विच कर जाते हैं, तो उनसे बेटर है कि वो कस्टमर्स जो कि कंप्लेन कर रहे हैं उनकी कंप्लेंट्स को मैं सॉल्व करके उनको रिटेन कर लूँ। द कस्टमर्स needs when they complain. The customer has two separate needs when complaining. First, needs relating to the complaint, और needs as individual. First of all, तो वो खुद complain के लिए करते हैं कि लाइक पर्टिकुलर में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वो खुद के लिए सोचते हैं कि मैं अगर डिसअपॉइंट हूँ तो मेरी लास्ट सर्विस ऐसी थी, मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ था, बट इस टाइम पे मैं डिसअपॉइंट हूँ, तो मेरी खुद की नीड है, मुझे वो सर्विसेज चाहिए, इस वजह से मैं कंप्लेन कर रही हूँ।
The customer needs when they complain, needs relating to the complaint to have their concern dealt with it quickly, fairly, properly, to be given what they have been denied and perhaps an apology, to have action taken to rectify a problem or address a concern or resultant process change. Needs relating to the complaint, कंप्लेन से रिलेटेड क्या नीड्स हो सकती हैं, लाइक हम चाहते हैं कि मेरा जो मैटर है वो फेयरली और प्रॉपरली फिर क्विकली सॉल्व हो जाए, ठीक है, या फिर मैं ये चाहती हूँ कि वो अपॉलोजी कर लें किस पर्टिकुलर चीज़ पर और फिर इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल दें, ठीक है, इस चीज़ को पर्टिकुलरली एड्रेस कर लें. और नीड्स एज इंडिविजुअल, डैट मीन्स कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्या पता मेरे पार्ट पे कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या फिर मेरे सुनने में कुछ प्रॉब्लम हुई हो. सो दिस इज व्हाट द इंडिविजुअल नीड्स, complaint needs. When the customer need is met, you automatically engage your customers as your advocate. हम advocate से engage करा देते हैं, like a person who publicly supports or recommends you, someone who speaks or argues in your favor. वो person जो कि मेरे favor में बोल रहा है वो एक तरह से मेरा advocate हो गया है. For handling customer complaints, how do you react to the customer complaints about the way you do your work, especially when you think you are doing your best? So first, people react to the customer complaints in different ways. Some ignore the complaints. Second, they become defensive. कुछ डिफेंड करने लगते हैं. become angry or annoyed. कुछ तो मतलब या तो मेरे सर्विस प्रोवाइडर कंप्लेंट्स को इग्नोर कर दे या फिर अपनी ही चीज़ पे अड़ा रहे और डिफेंस करता रहे, खुद को डिफेंड करता रहे, या फिर बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया, अनॉयड हो गया है कि लाइक मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूँ ये, एंड आर कंसर्न अबाउट द लॉस ऑफ द ट्रेड और डैमेज टू देयर प्रोफेशनल रेपुटेशन. वह सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो मेरी रेपुटेशन को क्या होगा. नेक्स्ट, फॉर अदर्स इट इज़ हिंड्रेंस. दे जस्ट विश द कस्टमर वुड गो अवे. कुछ तो सोचते हैं कि कस्टमर चला जाए, कुछ ये सोचते हैं कि जो कस्टमर है उसने कंप्लेन क्या किया, उसे उस पर विश्वास ही नहीं होता कि ये तो कंप्लेन है, ठीक है. दीज रिएक्शंस आर एज रिजल्ट ऑफ ब्लेम बीइंग एट्रीब्यूटेड टू अस और आर ऑर्गेनाइजेशन. उसको बस इतना लगता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे ब्लेम कर रहा है. सो हाउ टू हैंडल कंप्लेंट? फर्स्ट, लिसन देम प्रॉपरली, रिपीट whatever services you are given to the customer, apologize, acknowledge them, explain the actions that what actions you are going to take to solve that problem, thank you, follow up, remember not to take it personally, remain calm always, focus on the problem not the person, turn unhappy people into the happy customers. How to handle the customer complaints? Address customer by the name. All communication should be in the first person. Use I'm sorry, not we. Don't make excuses or blame others in your organization. Give the customer your full attention and establish eye contact. Paraphrase their complaint in your own words to determine whether you have correctly understood the situation. That means जो भी situation उन्होंने बताई है, जो भी complaint उन्होंने बताई है, उसे अपनी language में उन्हें समझाना कि ओके तो आपकी complaint ये है. If you do not know the answer to the problem, don't lie. Call back when you say you will, even if for some reason you haven't been able to obtain a satisfactory answer by then. Make the customer part of the solution, not part of the problem. Don't be defensive. Be composed at all times. Don't take criticism personally. Offer an apology even if this service is not your fault. Show empathy by using such phrases. I can understand how you feel. I appreciate what you are saying. So these are the kinds through which we can handle the customer complaints. Tell them what you can do, not what you can't do. Find out what it will take to turn their dissatisfaction into satisfaction. If they agree to take solution, act quickly before they change their mind. ठीक है, अगर आपने कोई solution दे दिया है और वो एग्री भी हो गया है तो वही कि भाई हमें उसे रोक देना है, फॉलो अप करना है. एंड रिमेंबर, यू कैन नेवर विन एन आर्ग्यूमेंट विद अ कस्टमर. हम कस्टमर से कभी नहीं जीत सकते, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो. So steps for handling the complaints at the organization's level. There is a need for complaint handling system which will involve the following steps as minimum. First, acknowledge receipt of the complaint. हम उनके ही सामने उनके एक्नॉलेज रिसीट बताएंगे कि लाइक आपकी जो भी कंप्लेन है वो एड्रेस कर ली गई है, ये आपकी रिसीट है. एक्यूरेटली रिकॉर्ड कंप्लेन इन्फॉर्मेशन एंड मेक इट एसेसिबल.
हम एक्यूरेटली रिकॉर्ड करेंगे और उन्हें दिखा भी देंगे कि लाइक दिस इज योर कंप्लेंट नंबर, अटैच टाइम फ्रेम्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द कंप्लेंट। उसी के साथ एक अटैचमेंट भी डाल देंगे लाइक योर कंप्लेंट would be rectified within 30 days or in the 30 days time of period, so that they can be satisfied that particular time.